गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जितने भी लेसन्स आपको भेजे जा रहे हैं वीडियो में, अच्छे से तैयारी करनी है। ओके, सो नाउ लेट अस कंटिन्यू द सेम लेसन नंबर 6। yesterday we were talking about leaching. याद आया? So what is leaching? When ore is soluble in some suitable solvent, then this method of concentration is used. इसमें दो चीजें हमें पढ़ेंगे। फर्स्ट इज लीचिंग ऑफ एल्यूमिना फ्रॉम बॉक्साइट ओर। ठीक है, कल मैंने बताया था तुम्हें 3 इम्प्योरिटीज आर प्रेजेंट इन बॉक्साइट। फर्स्ट इज आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड्स FeO हो सकता है या Fe2O3 हो सकता है। देन टाइटेनियम ऑक्साइड TiO2, दैट इज टाइटेनियम ऑक्साइड। देन SiO2, सिलिकॉन ऑक्साइड। Okay, so these type of impurities, this is also known as silica. So these type of impurities are present in bauxite. अब क्या करते हैं लीचिंग में कि powdered ore is digested यानी मिक्स करते हैं अच्छी तरह से, digested with concentrated solution of NaOH, concentrated NaOH solution, right? And temperature will be 473 to 523 Kelvin. This will be the temperature 473 to 523 Kelvin, and pressure will be 35 to 36 bar pressure, right? When it is digested, then alumina is leached out as sodium aluminate. एक compound बनेगा, that is sodium aluminate. और जो SiO2 अगर प्रेजेंट है तो SiO2 will be leached out as sodium silicate. Now let me write the reaction. Al2O3 solid plus 2 NaOH, concentrated NaOH, plus 3 moles of H2O will give us, ध्यान से देखना ये कंपाउंड का नाम, 2NaAlOH4 aqueous. This compound is known as hydrated sodium aluminate. Let me show you. Hydrated aluminium hydrated sodium, not aluminum, sodium, hydrated sodium aluminate, TE. ओके, ये क्या है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनेट। कैसे बना? एल्यूमिना, पाउडर्ड एल्यूमिना मिक्स्ड विथ कॉन्सेंट्रेटेड NaOH and H2O, liquid H2O is present, and this will at 473 to 523 Kelvin, it is the reaction is done, and it will form 2 moles of NaAlOH4, hydrated sodium aluminate. This aluminate, अब इस aluminate को न्यूट्रलाइज करते हैं। This aluminate is neutralized by passing CO2 gas, and then hydrated alumina is precipitated, and then हाइड्रेटेड एल्यूमिना को बाहर निकाल लेते हैं। एल्यूमिना इज प्रेसिपिटेटेड। ठीक है, नाउ लेट मी शो यू दिस रिएक्शन। Al, अपने पास क्या कंपाउंड है? हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनेट। सो 2NaAlOH4 प्लस ये एक्वस है, प्लस CO2 इज गैस। ये क्यों कर रहे हैं? ये न्यूट्रलाइजेशन कर रहे हैं। ओके, सो प्लस CO2 गैस विल गिव अस Al2O3 XH2O। अभी भी ये सॉलिड फॉर्म में ही है। ओके, प्लस NaH सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दिस इज एक्वस। दिस इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। वेयर जो अपने पास सिलिका था ना, वो सोडियम के साथ क्या बनाया? सोडियम सिलिकेट।
तो सोडियम सिलिकेट वाटर में ही रह जाएगा. सोडियम सिलिकेट इज इन वाटर ओनली. अब ये Al2O3XH2O, ध्यान से देखो, अभी भी इसमें H2O है तो इसको रिमूव करना है. तो व्हाट विल बी डन? इट विल बी हीटेड. सिंपल है. सो Al2O3XH2O is heated at high temperature 1470 Kelvin and it will give Al2O3 solid. अब हो गया क्योंकि water molecules निकल गए. So plus XH2O. So this is all about leaching of alumina from bauxite ore. ठीक है. Next we will go for this is the same reaction which we had written right now. Next part of the leaching is, second example of leaching is metallurgy of Ag and Au, silver and gold. Second example of leaching is metallurgy of silver and gold. ठीक है. तो metallurgy of silver यानी silver और gold metal को निकालना है. तो the respective metal is leached with a dilute solution of, इसमें भी the Ag or Au is leached with a dilute solution of sodium cyanide, dilute solution of NaCN, dilute solution of NaCN or KCN, potassium cyanide. KCN is presence of O2, in presence of air या O2 जो बोलो, presence of air or O2, from which the metal is obtained. Okay, so from which the metal is obtained. ये हमेशा बोर्ड में 2 मार्क का क्वेश्चन आता ही है अल्टरनेट ईयर्स में. सो ध्यान रखना इस रिएक्शन को. फ्रॉम विच द मेटल इज obtained. The reaction will be like this. 4 metal यानी 4M लिखा होगा, बुक में भी देखना लिखा हुआ सेम रिएक्शन. M solid plus 8CN minus, ये CN क्या है? आइदर NaCN में से निकला और KCN में से, प्लस वाटर प्लस O2 is equal to, what will be formed? MCN2 है ना, माइनस चार्ज रहेगा इसके ऊपर. ये एक्वस है, जब भी चार्ज है तभी समझ जाना है ये एक्वस सॉल्यूशन है. 4MCN2 एक्वस प्लस 4OH माइनस. फाइन. M क्या है? What is M here? See the reaction again. 4M plus 8M मतलब either gold और silver. इनकी लीचिंग इस मेथड से होती है. So we will write here where M is equal to Ag और Au. Correct? Similarly, अब इसके बाद इसकी ट्रीटमेंट जिंक के साथ करते हैं. So 2MCN माइनस चार्ज कर दो यहाँ. एक्वस, यहाँ एक्वस लिखो, दिस इज एक्वस, प्लस जिंक सॉलिड, जिंक के साथ ट्रीट किया. सो इट विल फॉर्म ZnCN4 प्लस मेटल इज ऑब्टेन्ड. प्योर मेटल इज ऑब्टेन्ड. सो ये एक्वस कर दो क्योंकि चार्ज है इसके ऊपर. सो यू सी मेटल साइनाइड आयन है कहां से? आइदर फ्रॉम NaCN और KCN, देन H2O और I told you O2 के प्रेजेंस में. सो इट विल फॉर्म दिस MCN होल 2, माइनस चार्ज रहेगा, एक्वस है इसलिए, प्लस 4OH माइनस. दिस MCN2 is treated with, this aqueous solution is treated with zinc and it will form the complex ion that is ZnCN4 2 plus 2 metal. यानी मेटल इज ऑब्टेन्ड. सो दिस इज अबाउट लीचिंग ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर. लीचिंग में हमने 2 चीजें पढ़ी. पहले क्या पढ़ा? लीचिंग ऑफ एल्यूमिना फ्रॉम बॉक्साइट एंड लीचिंग ऑफ Ag एंड Au. ठीक है. नाउ वी विल गो फॉर इन टेक्स्ट क्वेश्चन. लेट मी शो यू इन टेक्स्ट क्वेश्चन इन द बुक.
Which of the ores mentioned in table 6.1 can be concentrated by magnetic separation method? Yesterday we read about magnetic separation method, जो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो, either गैंग और मेटल, तो दोनों में से जो भी होगा उसको मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड करते थे. याद आया? मैग्नेटिक रोलर के ऊपर से हमने पास किया था. सो लेट मी शो यू टेबल नंबर 6.1. तो कौन से होंगे इसमें, ध्यान से समझना. जिसमें आयरन वाली चीजें होंगी वो होगा, तो लाइट इसमें नहीं है. ऑल दीज Fe2O3, Fe3O4, FeCO3 that is siderite and iron pyrite. Correct? All these will be separated with magnetic separation method. Second question is, what is the significance of leaching in the extraction of aluminium? तो उसका आंसर हम कैसे करेंगे? ये वाला आंसर पूरा का पूरा लिख देंगे. लीचिंग ऑफ एल्यूमिना फ्रॉम बॉक्साइट. पहले एल्यूमिना मिल जाता है, उससे ही तो एल्यूमिनियम इज ऑब्टेन्ड. सो दिस होल पैराग्राफ विद बोथ द रिएक्शंस वी हैव टू राइट. Next topic is 6.3, extraction of crude metal from concentrated ore. This lesson is based up for the metallurgy beta. So you have to understand and you have to prepare the lesson. 10 marks weightage है, उस हिसाब से prepare करना है. Okay. So the concentrated ore must be converted into a form which is suitable for reduction. ठीक है, ऐसे फॉर्म में ले आओ जहां से उसका रिडक्शन हो सके. So finally रिडक्शन करना है. So there are, see carefully, first is conversion to oxides. ठीक है, तो convert into oxide या conversion to oxides. ठीक है, so conversion to oxide, then reduction of oxide to metal. क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि ऑक्साइड्स में क्या फायदा होता है, ध्यान से देखना, कि ऑक्साइड्स आर इजियर टू रिड्यूस. ऑक्साइड्स आर इजियर टू reduce. ठीक है, और फॉर दिस रीजन ऑक्साइड ओर्स आर प्रेफर्ड. और सल्फाइड ओर को क्या करते हैं? सल्फाइड ओर इज कन्वर्टेड इनटू, देयरफॉर सल्फाइड ओर इज कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड. कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड. बात समझ में आई? ऑक्साइड्स आर इजियर टू रिड्यूस, और फाइनली रिडक्शन से ही हमें मेटल मिलेगा. सो सल्फाइड ओर जितने होते हैं उसको पहले ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देते हैं. इसके लिए 2 मेजर स्टेप्स ऑफ आइसोलेशन ऑफ मेटल्स आर कन्वर्जन टू ऑक्साइड. आई टोल्ड यू, कन्वर्जन टू ऑक्साइड. उसमें फर्स्ट वन आएगा कैल्सिनेशन. एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ सकता है? डिफाइन कैल्सिनेशन एंड राइट एनी 2 रिएक्शंस. और सो व्हाट वी विल राइट, कैल्सिनेशन मीन्स हीटिंग. कैल्सिनेशन मीन्स हीटिंग when the volatile material escapes leaving behind the metal oxide. Calcination means heating so that volatile, जो वेपर बन जाते हैं, volatile matter escapes या चले जाते हैं, escapes, leaving behind the metal oxide, leaving the metal oxide. Correct? So let me show you the example. It is written in the textbook also. Fe2O3 XH2O. अब इसको हीट करेंगे, सबको मालूम है. XH2O will be removed, वेपर बन जाएगा. So it will be heated. So heat की साइन लगा दो. What will be left बेटा? आयरन ऑक्साइड, Fe2O3. ठीक है, आयरन ऑक्साइड. इसको कौन सा ऑक्साइड कहेंगे? आयरन 3 ऑक्साइड है. आयरन की 2 वैलेंसी होती है, 3 and 2. ओके, सो Fe2O3 आयरन 3 ऑक्साइड प्लस XH2. ये गैस हो गया. कैसे गैस हो गया? बिकॉज वेपर इज फॉर्म ऑन दिस इज सॉलिड. सेकेंड एग्जाम्पल, लेट मी शो यू. ZnCO3. ZnCO3 सॉलिड स्टेट में है, इसको हीट किया. So what will be formed? ऑक्साइड चाहिए ना, तो let me write ZnO plus CO2. क्योंकि ऑक्साइड forms are easy to reduce, तो ये solid हो गया and this is gas. Similarly, third example is also written in notebook. CaCO3 MgCO3. वो भी तुमको देख के लर्न कर लेना है.
Then next is roasting. Calcination के बाद second thing is roasting. R-O-A-S-T-I-N-G, roasting. In roasting, what is roasting? The ore is heated in regular supply of air. Ore heated with air. इसमें air नहीं था. Here direct heating was there in calcination. Here ore is heated with air. Okay. In a furnace at a temperature below the melting point of metal. Melting point से below temperature पे उसको heat करते हैं furnace. Heated with air. Okay. So what will happen there? Some of the reactions are like ZnS को heat करो. So ZnS, zinc sulfide plus oxygen. Oxygen की supply में heat करना है. So obviously you know ZnO, zinc oxide will be formed. ZnO plus SO2 gas will be removed. So it will be example of roasting. ठीक है. Similarly PbS, 2PbS lead sulfide plus O2 बनाना क्या है? lead oxide, 2PbO plus 2SO2. SO2 sulfur will be removed and lead will be converted into oxide. Correct? Reason क्या है? Oxide में क्यों convert करते हैं? Because after converting into oxide, the reduction will be easier. इसमें 2-3 term अपने पास नए आएंगे बेटा. If ore contains iron, sulfide ores of copper are there. ठीक है? तो sulfide ores of copper like 2Cu2S. ये sulfide ore of copper. इसको heat करो 3O2. It will give us 2Cu2O plus SO2. ठीक है. अगर इस ओर में आयरन भी है तो आयरन को तो रिमूव करना पड़ेगा. आयरन को रिमूव करना पड़ेगा. तो आयरन को कैसे रिमूव करते हैं? आयरन को रिमूव करने के लिए फ्लक्स इज एडेड. आयरन को रिमूव करने के लिए फ्लक्स इज एडेड. व्हाट इज फ्लक्स? फ्लक्स इज एडेड. सो आयरन को रिमूव करने के लिए फ्लक्स इज एडेड. दिस फ्लक्स विल नाउ इट इज, अगर फ्लक्स अगर हमारा सिलिका है, ठीक है, तो क्या होगा? फ्लक्स इज सिलिका फ्लक्स. सो व्हाट आई वाज टेलिंग यू, द सल्फाइड ओर्स ऑफ कॉपर आर हीटेड इन लेबोरेटरी फर्नेस. इफ द ओर कंटेन्स आयरन, तो आयरन हैज टू बी रिमूव्ड क्योंकि कॉपर ऑब्टेन करना है. सो आयरन को हटाने के लिए सिलिका इज एडेड. सो आयरन ऑक्साइड प्लस सिलिका SiO2 will give us FeSiO3. This is known as slag. Okay, so the impurity is removed, iron is removed out. Iron is iron oxide slag soft. अपनी बुक में लिखा है slag soft, यानी slag की तरह बाहर निकल गया. So what is left here? Copper is produced. So copper is produced in the form of copper matte. ये भी नया टर्म है अपने लिए. इन द फॉर्म ऑफ कॉपर मैटे या मैट, वॉट एवर यू प्रोनाउंस इट, कॉपर मैटे, विच इज, ये हमेशा आता है 1 मार्क क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में, Cu2S प्लस FeS. कैसे क्वेश्चन आएंगे? विच ऑफ देम इज ऑल्सो नो एग्जाम्पल ऑफ मैटे. तो कोई भी 2 सल्फाइड करेगा, अपना आंसर आएगा Cu2S प्लस FeS आउट ऑफ द 4 ऑप्शंस. और जो इन सब प्रोसेस में SO2 निकला ना, यहाँ भी दिख रहा है SO2, सल्फर इज रिमूव्ड लाइक SO2, सल्फर इज रिमूव्ड लाइक SO2, सल्फर इज रिमूव्ड लाइक SO2. ये SO2 इज नॉट वेस्टेड, इट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ H2SO4, राइट. सो नेक्स्ट डे वी विल रीड reduction of oxide to the metal and what are the thermodynamic principles of metallurgy.